सर जी जी थैंक यू। ओके, गुड इवनिंग बच्चों। एवरीबडी जॉइंड। In the morning, we have done till different processes for the first order reaction. Sorry, for first order, I'm so sorry. For the first law of thermodynamics. Now we will start with the next part, that is the enthalpy. Should I start or should I wait for some people? सब लोग join हो गए क्या? ठीक है, 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 8:05 को स्टार्ट कर लेते हैं। Okay, I think many people joined. चलो, now we will start with the next topic, which is enthalpy. ठीक है, enthalpy is generally represented by H. It is delta H, that is H2 minus H1. ठीक है, तो what is enthalpy of the system? Basically it is actually, इसको अगर short word में कहा जाए तो it is total heat content of the system. Am I audible बच्चों? Yes, miss. Yes, okay. हाँ. So enthalpy is represented by H, delta H, that is H2 minus H1. That is basically official definition नहीं है, but इसको बोलते हैं total heat content of the system. ठीक है? Again, we are writing delta H, H2 minus H1. So it is your state function. ठीक है? What is state function? It depends only on initial and the final state of your system. ठीक है? अब एक्चुअली में कैसे होता है, H इज इक्वल्स टू U प्लस PV होता है। मतलब एंथैल्पी इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम और हीट ऑफ द सिस्टम। जब आप क्या करोगे, इट इज द एडिशन, इट इज अ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ठीक है, एनर्जी अराइजेस और द हीट अराइजेस ड्यू टू इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। मतलब जब आप इंटरनल एनर्जी लोगे और प्रेशर वॉल्यूम वर्क दोनों को कंबाइन करोगे तो दैट टोटल is called as enthalpy of the system. आया समझ में? What is enthalpy of the system? It is the energy or the heat arises due to internal energy and the pressure volume work of the system. और दूसरे लफ्जों में क्या बोल सकते हो? Enthalpy is nothing but the sum of internal energy and the pressure volume work. Is it okay? अब देखो, हम लोग को ये प्रूव करना है कि it is a state function. कैसे करेंगे? I will write down here delta H is equals to H2 minus H1.
आई विल राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1. फिर मैं लिखूंगी यहाँ पे H1 is equals to U1 plus P1 V1. Then H2 is equals to U2 plus P2 V2. This is your equation number 2. ठीक है. Now substitute 2 into 1. So delta H is equals to U2 plus P2 V2 substitute कर दिया minus U1 plus P1 V1. ठीक है. Now open the bracket. U2 plus P2 V2 minus U1 minus P1 V1. अभी दोनों U को साथ में लेके आओ. U2 minus U1 plus P2 V2 minus P1 V1. अब ये क्या हो गया? Can I write down this as delta U? So I will write down here delta U plus PV2 minus PV1, which where I have considered P1 is equals to P2 is equals to P. तो दोनों को क्या कंसिडर कर दिया? ये पार्ट. सो डेल्टा H is equals to delta U plus P V2 minus V1. So I will write down here delta H is equals to delta U plus P delta V. ये आपका एक्सप्रेशन है एंथैल्पी का. एकदम सिंपल था. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस. एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी and the energy arises due to pressure volume work. So delta H is H2 minus H1. I have written here H1 क्या है, H2 क्या है. Substituting 2 into 1, you just substitute this. फिर ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये आ गया. ठीक है. फिर ये U को साथ में रखा और इन सबको ऐसे ही रख दिया. फिर this can be written as delta U plus मैंने क्या कंसिडर किया? P1 equal to P2 equal to P. That is P V2 minus P V1. This is P V2 minus V1. Delta H is equals to delta U plus P delta V. Clear? Understood enthalpy का ये derivation? Everybody? Yes, ma'am. अभी देखो, आपको याद है हमने थोड़ी देर पहले किया था कि QP is equals to delta U plus P delta V. Do you remember? सुबह में ही किया था. QP is equals to delta U plus P delta V. Do you remember this? किधर गया वो पेज? भी मुझे याद नहीं है. याद है क्या? इंटरनल एनर्जी को अरेंज करके लिखा था, है ना? सुबह में ही किया था. तो कैन आई से डेल्टा H is equals to QP only? करेक्ट? Yes, ma'am. क्योंकि देखो ना, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड. सो डेल्टा H इज आल्सो इक्वल टू QP. बस ये है डेरिवेशन इसका. एकदम सिंपल था. अभी मुझे बताओ कि H और QP दोनों भी क्या है? स्टेट फंक्शन है. Correct. So enthalpy is a state function. Internal energy is a state function. Delta V is the state function. QP is also a state function. Clear? चलो इतना लिखो फटाफट. कॉपी करो. किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो पूछो. Write down enthalpy. It is denoted, point number 1, it is denoted by H. Enthalpy. एक मिनट. हाँ. Enthalpy it is. हाँ हाँ एक मिनट वापस से बोलते. Enthalpy. Point number 1, it is denoted by H. It is a state function denoted by H. It is a state function अरे एक मिनट, मेरा स्टैंड निकल गया. एक मिनट, सॉरी. लिखा it is a state function. Then write down delta H is equals to H2 minus H1. हाँ रुको, डेफिनेशन बताती हूँ. अभी नहीं, रुक जाओ प्रगति. फर्स्ट राइट डाउन डेल्टा H is equals to H2 minus H1. अभी लिखो एंथैल्पी का डेफिनेशन. ठीक है. Enthalpy of the system is enthalpy of the system is enthalpy of the system is sum of internal energy and sum of internal energy and
energy equivalent to pressure volume work, PV work, and energy equivalent to pressure volume work. चलो अभी ये कॉपी करो पूरा, ठीक है? कुछ नहीं समझेगा तो पूछो. मैम एनर्जी के आगे क्या? And energy equivalent to pressure volume work. Energy equivalent to pressure volume work. ठीक है, लिख लो, हो जाएगा तो डन लिखो, then I will take another derivation. मुझे एंथैल्पी के टाइटल के अंदर ही लिखना है ना? हाँ, पूरा एंथैल्पी के टाइटल के अंदर ही लिखना है. मिस सेकेंड लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा है? कौन सा सेकंड लास्ट लाइन? ये ऑल्सो के नीचे वाला पी के आगे कौन सा सिंबल है? QP is equals to delta U plus P delta V. ओके. This we have done na last time. In the morning we have done this. So delta U plus P delta V. हो गया? यस. Okay. चलो अभी next we will do relationship between delta H and delta U for chemical reaction. Okay. Now see how we are going to take out this relationship. Delta H is equals to delta U plus P delta V. Just now we have done this, correct? एक minute. Now we will open this equation as delta H is equals to
delta U plus P V2 minus V1. So delta H is equals to delta U plus PV2 minus PV1. Correct? Now from ideal gas equation, PV1 is equals to N1 RT and PV2 is equals to N2 RT. Suppose this is my equation 1 and this is equation 2. I can substitute here. Barabar? So what we will get here, delta H is equals to delta U plus N2 RT minus N1 RT. Is it okay? This much is clear? Yes, ma'am. Yes. उसके बाद क्या हो जाएगा, delta H is equals to delta U plus what is common, RT is common, N2 minus N1. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, delta H is equals to delta U plus delta nRT लिख सकते हैं ना. This is the another equation which we will use for numerical. Easy था एकदम. This is a relationship between delta H and chemical energy. In short, delta N. अभी आप पूछोगे what is delta N? Delta N is nothing but N2 minus N1. So what is N2? N2 होता है number of moles of gaseous product. ठीक है? Minus number of moles of gaseous reactant. ठीक है? So you have to take care that your reactant and product should be in the gaseous state. अगर solid या gaseous, solid या liquid state में होगा, ये क्या हो गया? एक मिनट, दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके. अगर वो Yes, ma'am. solid या liquid के state में होगा तो उसको ignore कर देना है. If only it is in the gaseous state, then only you have to take. तो आपके ना actually textbook में इसके नीचे ऐसे G लिखा हुआ है, G. G मतलब it should be in the gaseous state. समझा? चलो लिख लो ये फटाफट. कुछ डाउट होगा तो पूछो, ठीक है? मिस कैमरा थोड़ा ऊपर लो ना. ठीक है, हाँ मिस. ओके. Miss delta U internal energy है ना? यस यस, डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, करेक्ट. ये यहाँ पे जी नहीं लिखा तो भी चलेगा. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट शुड बी इन द नंबर ऑफ मोल्स यू आर सपोज्ड टू टेक फॉर द gaseous reactant and product.
इसके बाद एक और डेरिवेशन है डब्ल्यू के साथ वाला, फिर एंथैल्पीज है। फिनिश्ड एवरीवन? मिस ओके, हाँ बोलो। मिस ये एनर्जी गैसियस फॉर्म में होता है तभी फाइंड करना होता है ना, ये डेल्टा है यस नीचे वाला। यस यस यस। अगर अगर सॉलिड में और लिक्विड में दिया होगा तो वो डेल्टा एन नहीं फाइंड करना। नहीं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे लिखा H2 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस बट HCl लिक्विड, तो आप इसको कंसिडर ही नहीं करोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा और इसका 1 + 1 2 आ जाएगा। गैसियस वाला ही लेने का, इसका एक और इसका एक के 2 हो गया। हम करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व, तो लिक्विड वाला लेना ही नहीं है, ना लिक्विड लेना है, ना एक्वियस लेना है, ना सॉलिड लेना है, ओनली गैसियस स्टेट यू आर सपोज्ड टू कंसीडर। ओके ठीक है। मैम। चलो अभी नेक्स्ट इज वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा अभी, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, फिर W इज इक्वल टू माइनस पी V2 माइनस V1, W इज इक्वल टू माइनस पी V2 प्लस पी V1। वापस से क्या लिखेंगे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV1 is equals to N1 RT and PV2 is equals to N2 RT। तो ये हो जाएगा W is equals to minus N2 RT plus N1 RT। तो माइनस ऐसे रखो, RT गया और ये हो जाएगा N2 minus N1। Am I right? So W is equals to, can I write down delta N RT, sorry minus delta N RT minus delta N RT। समझा, इजी था एकदम। Just substitute, take out RT as common, then N2 minus N1, this is minus delta nRT। ठीक है, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ऋषि बेटा, आपके यहाँ पे कुछ तो नेटवर्क इशू है, आप चेक करो। सबको नहीं दिख रहा है क्या बच्चों? दिख रहा है मैम। हाँ ऋषि आप चेक करो आपका नेटवर्क। ठीक है ऋषि, एंड करके वापस ज्वाइन हो जाओ। एक्चुअली बारिश भी है ना आज, तो थोड़ा नेटवर्क ज्यादा खराब हो सकता है। हो गया बच्चों तो मुझे बोलो हाँ, then I will teach you some conditions। इजी है ना चैप्टर, देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। इसके पहले क्या ना, डेल्टा एच किधर गया, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला कैसे सिलेक्ट करने का, जो जिया दिया रहेगा ना उसके हिसाब से फॉर्मूला सिलेक्ट करके सॉल्व कर डालने का, हो गया खत्म, टेंशन ही नहीं। अभी इसके कंडीशन है, मीन्स N2 माइनस N1 कैसे आया,
अरे बच्चा हम लोग हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं ना। हाँ यश, डेल्टा एच आप कभी H1 माइनस H2 लिखते हो क्या? नहीं ना, यू आर राइटिंग H2 माइनस H1 है ना। तो डेल्टा एन कैसे लिखेंगे? N2 माइनस N1। तो ये हमेशा प्रोडक्ट का होता है, ये हमेशा रिएक्टेंट का होता है, समझा? हमको नहीं चाहिए। फिनिश्ड बच्चों? डन? टर्न कर रही हूँ पेज, मैं कर दूँ? ओके ठीक है चलो। अभी कंडीशंस लिखो। हाँ, इसके ही कंडीशंस है ये वाले। हाँ कंडीशंस इसके नीचे ही लिखना। एक मिनट। चलो क्या लिखेंगे अभी हम लोग? सबसे पहले फर्स्ट केस, केस 1, इफ N2 इज ग्रेटर देन N1, तो मेरा डेल्टा N कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। देयरफॉर वर्क डन लेस देन 0 आएगा। वर्क डन लेस देन 0 आया मतलब वर्क डन इज नेगेटिव। एम आई राइट? तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम? बोलो। अगर वर्क डन नेगेटिव By आता the है, system. यस, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक है, बाय द सिस्टम। चलो केस 2, व्हाट इज केस 2 नाउ? इफ N1 is greater than N2, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा N विल बी नेगेटिव। तो वर्क डन आएगा ग्रेटर देन 0, मतलब वर्क डन विल बी पॉजिटिव। अब बोलो, इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम? On the system. On the On the system, correct. So work is done on the system. चलो अभी थर्ड केस, केस 3। केस 3 is if N1 is equals to N2, तो डेल्टा N 0 आएगा। W क्या आएगा बच्चों? 0, बराबर। तो क्या काम हुआ यहाँ पे? देर इज नो प्रेशर वॉल्यूम वर्क ना, सो इट इज कॉल्ड एज फ्री एक्सपेंशन। समझा तीनों केसेस? दे में आस्क यू इन द एग्जाम्स, ऐसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं, तो एकदम समझ के आंसर कर देना बस। अच्छा मिस ये लास्ट का W is equal to 0 कैसे आया? ये देखो ना, अपना फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी ना। ये 0 हो गया तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा ना। यस और नो? हाँ मिस यश? समझा। हाँ, हम लोगों ने जो भी किया है ना, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आर टी के साथ किया है। अच्छा मुझे बताओ, इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स ले लूं या आगे थ्योरी सिखाऊं? क्या बोलते हो तुम लोग? न्यूमेरिकल करोगे? मिस एक डाउट। Theory. क्या क्या? Miss theory. थ्योरी करूं? हाँ न्यूमेरिकल बोर हो गया तुम लोग? नहीं मिस न्यूमेरिकल। क्योंकि रुको, इसका अभी थ्योरी कितना पता है? थ्योरी चालू किया ना अभी अपना, तो 2 लेक्चर जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल आएगा। चलेगा? ठीक है चलो थ्योरी हाँ करते हैं। चलेगा मैम, चलेगा। ठीक है चलो, ये हो गया सबका लिख के? मिस एक डाउट था। हाँ बोलो ना, बोलो यश। मिस नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का मतलब सेम ही आएगा ना मिस? नहीं बच्चा, हमेशा सेम नहीं आता है। देखो मैं बताती हूँ।
रुको एग्जांपल लेने दो मुझे एक। SO2 in the gaseous state, O2 in the gaseous state, SO3 in the gaseous state. Balance करो. This is 4, this is 2, this is 4. इसका डेल्टा n क्या आएगा? N2 minus N1. N2 मतलब number of moles of gaseous state, तो ये 4 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 4 + 2 6 हो गया ना, कितना आएगा? -2 आएगा डेल्टा n। नंबर ऑफ मोल्स अलग हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब कोएफिशिएंट्स। यश, तुम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, एटम की बात करो, एटम सेम रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ मोल्स कैन बी डिफरेंट ना, समझा? हाँ मिस, समझा बैलेंसिंग मिस। के लिए हम लोग अलग अलग नंबर यूज कर सकते हैं, करेक्ट। खाली ये जो एटम्स होते हैं ना, ये सेम रहते हैं। अगर यहाँ पे एक ऐसा है तो यहाँ पे भी एक ऐसा रहेगा, यहाँ पे 4 ऐसे तो यहाँ पे भी 4 ऐसे रहेगा, वो बैलेंसिंग होता है। लेकिन कोएफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स मतलब कोएफिशिएंट लेते हैं। ओके, यस मिस, समझा अभी। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? मैम केस 3 दिखाओ ना एक बार। हो गया मिस। मिस गया यहाँ सबका? स्टेटमेंट क्या आएगा? वर्क इज नॉट डन ऑन द सिस्टम आएगा क्या? फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन, देयर इज नो वर्क डन ना, तो देयर विल बी अ फ्री एक्सपेंशन, समझा? मिस फ्री एक्सपेंशन क्या होता है? मतलब भूल गया मतलब देयर मिस। इज नो प्रेशर, देखो W इज इक्वल टू -P डेल्टा V, तो प्रेशर ही नहीं है तो वर्क डन हुआ ही नहीं ना, बिकॉज द होल थिंग बिकम्स जीरो। सो व्हेन देयर इज नो प्रेशर, वर्क डन विल बी जीरो, समझा? अच्छा मिस, मतलब पिस्टन ही नहीं है। पिस्टन ही नहीं है, यस करेक्ट। यहाँ पे भी देखो हाँ ना, मिस, देयर इज समझा। नो नंबर ऑफ मोल्स है ही नहीं ना, गैस का है ना रिएक्टेंट का, तो जीरो हो गया। तो RT टेम्परेचर इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं, तो वर्क डन विल बी जीरो, यस मिस। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? चलो, शुड आई प्रोसीड बच्चों? Yes. अभी मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि मैं थ्योरी सिखाऊं, तो मैं भी थ्योरी सिखा देती हूँ, कल करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो, अभी हम पढ़ेंगे एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें लिखना बहुत सारा है लेकिन थ्योरी में भी डेफिनेशन सारे लिखने हैं, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद द सॉरी एंथैल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। What is physical transformation? Solid to liquid, liquid to gas, gas to solid, ठीक है, solid to gas, all those phases are called as physical transformation. Also, atomization means if your molecule is breaking down in the form of atoms, it is called as atomization. तो जो physical changes होते हैं, in that case, what are the enthalpies that we have to study? ठीक है। Now remember one thing, when, एक चीज ध्यान में रखना, when bond formation takes place, जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, डेल्टा H हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, हीट विल ऑलवेज इवॉल्व, डेल्टा H विल बी नेगेटिव। जब दो चीजें जॉइंट होगी तो हीट बाहर निकलेगा, ठीक है। व्हेन बॉन्ड ब्रेकिंग टेक प्लेस, इफ यू वांट टू ब्रेक समथिंग, दोनों के बीच में झगड़ा लगाना है, so you have to add energy, so that time delta H will be positive, it is your endothermic reaction, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखोगे तो आगे का सब समझ में आ जाएगा। when bond formation takes, you are forming something, heat will evolve, you are breaking something, heat will absorb, so delta H negative exothermic reaction, delta H positive endothermic reaction, ठीक है। so enthalpies of transformation में मिस फर्स्ट वन, हाँ बोलो। मिस फर्स्ट केस में सिस्टम का, मतलब सिस्टम का हम टेम्परेचर चेंज करेंगे
मतलब चेक करेंगे तो मीन्स क्या आएगा, मतलब टेम्परेचर रेज होगा या कम होगा? इसमें पूछ रहे हो? यस मिस। ये मैंने आपको क्या बोला, इधर अभी सिस्टम हम लोग कोई भी ऐसे प्रोसेस नहीं पढ़ रहे बच्चा, हम लोग सिर्फ ट्रांजिशंस पढ़ रहे हैं कि अगर सॉलिड से लिक्विड गया, अभी देखो सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में गया, करेक्ट, आई एम नॉट डूइंग एनी प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है, एक कोई भी पैरामीटर हम लोगों को कांस्टेंट रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं यूज करने वाली हूँ, प्रेशर नहीं, टेम्परेचर नहीं, वॉल्यूम नहीं, कुछ नहीं। टेम्परेचर आप कांस्टेंट रख सकते हो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, तो उसको मेल्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए, करेक्ट। देखो सॉलिड ऐसा था, ठीक है, लिक्विड ऐसा हो गया, मीन्स आप ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो आपको जो डेल्टा एच है वो पॉजिटिव आएगा। अगर मैं उल्टा करूंगी तो क्या हो रहा है, अभी बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव आएगा। सिर्फ इसलिए, इतना बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने ये लिखा, समझा। अभी सपोज आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ऐड करोगे तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो डेल्टा एच क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझा। तो सिर्फ समझने के लिए बोला है कि व्हेन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डेल्टा एच को नेगेटिव लेना है, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा। समझा। हेलो। इस केसेस में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों कांस्टेंट ही रहेगा, बिकॉज इट इज जस्ट अ फेज ट्रांजिशन, सॉलिड टू लिक्विड। कोई हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, इट इज जस्ट अ फेज ट्रांजिशन। ओके यश। मिस फिर अगर हमने वाटर का लिया, वाटर अगर आइस में बदल रहा है मिस, तो हाँ, ये वाटर, नेगेटिव नेगेटिव। वाटर लिक्विड से वाटर आइस में हो गया, ऐसा ना। तो यही सेम यस मिस। प्रोसेस है, देखो फ्रीजिंग हो गया। अभी पढ़ेंगे हम लोग एक के बाद एक, वो बहुत सारा है, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्रीजिंग, हीट ऑफ सब्लिमेशन, वही पढ़ाने वाली हूँ आगे। इसके लिए खाली ये समझने के लिए लिखा। तो अभी यहाँ पे मिस तो अगर ये डेल्टा एच पॉजिटिव लिखा, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव आएगा आएगा, ना मिस करेक्ट। इसमें? नहीं, लिक्विड से सॉलिड बना रहे हो ना, लिक्विड से सॉलिड मतलब फॉर्म हो गया, नजदीक आ गया, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझा मैंने क्या बोला? ये देख ना, ये सॉलिड, ये लिक्विड है, ये वाटर है, और ये आइस है, तो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट किया ना, तो क्या होगा, अभी सब नजदीक नजदीक आ गया। वो सॉरी हाँ फॉर्मेशन है, हम मिस, तो हीट सॉरी इज मैंने उल्टा, डेल्टा एच हाँ सॉरी माइनस सॉरी होगा मैंने ना। उल्टा, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, नेगेटिव आएगा, करेक्ट। फॉर्मेशन है तो नेगेटिव आएगा, बराबर बराबर, ठीक है। हाँ मिस चलो समझ अभी गया। हम लोग, हाँ अभी हम लोग फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं, वही पढ़ाने वाले जो भी तुमने पूछा ना, वही सब पढ़ाने वाले। फर्स्ट वी विल स्टडी एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। चलो बताओ, हाउ मेनी फेजेस आर देयर? 3, solid, liquid, gas. When you are converting solid to liquid, this process is called as fusion. Melting भी बोलते हैं, it is called as fusion. Liquid to gas is called as vaporization. ठीक है, it is called as vaporization. फिर gas to liquid, उल्टा गए ना अभी, so it is called as condensation. Am I right? Then liquid to solid, it is called as freezing, correct. And solid to gas is called as sublimation. इतना clear? ये terms याद रखो, solid to liquid fusion, liquid to gas vaporization, gas to liquid condensation, liquid to solid freezing, and solid to gas sublimation. ठीक है. Now in this phase transition, first one, we are going to study enthalpy of fusion. ठीक है, enthalpy of fusion. Fusion बोला मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 1 mole of solid is converting into 1 mole of liquid, correct. So enthalpy of fusion is represented as delta FUSH. लिखते कैसे है उसको? delta FUSH. So what is that? enthalpy change. अभी ना मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखूंगी, बाकी सारे स्टेटमेंट आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है. What is enthalpy of fusion? Enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is converted into
1 mole of liquid at constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure is called as enthalpy of fusion. समझा? मतलब क्या किया मैंने? 1 मोल ऑफ सॉलिड, ये देखो 1 मोल ऑफ सॉलिड वाटर था, किसमें कन्वर्ट हो गया? 1 मोल ऑफ लिक्विड. तो इस केस के बीच में जो भी चेंजेस आया दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? डेल्टा फ्यूजन एच. करेक्ट. अभी हर एक का ना फिक्स्ड वैल्यू होता है, तो भी सबका वैल्यू तो हम लोग याद नहीं कर सकते. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर. तो हम लोग खाली इतना लिखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव किलो जूल्स पर मोल. पॉजिटिव क्यों लिखा? कोई तो एक नंबर है जो पॉजिटिव में है. एक्चुअली इसका नंबर है 6.01. अभी आप याद नहीं कर सकते इतना सारा. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर ऑल दोज नंबर्स. तो सिर्फ इतना लिख देने का कि पॉजिटिव किलो जूल्स पर मोल. पहला समझा व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. अच्छा, अगर मुझे लिखना है अभी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो मैं अभी यहाँ पे क्या लिखूंगी? डेल्टा वैप एच. क्या आएगा डेफिनेशन? एंथैल्पी चेंज दैट ऑकर्स व्हेन 1 mole of liquid is converted into 1 mole of gas at constant temperature and pressure is called as enthalpy of vaporization. Is it right? बोलो. Yes. यस मैम. है ना? अभी नेक्स्ट मैं बोलती हूँ, ठीक है? एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन क्या आएगा? when 1 mole of gas is converted into enthalpy change that occurs when 1 mole of gas is converted into 1 mole of liquid at constant temperature and pressure is called as enthalpy of condensation. तुम लोग को लिखना है अभी, इसको लिखते हैं ऐसा कंडेंसेशन. चलो नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग. चलो देखो ये सब है भी कि नहीं. मुझे पता चला मैं आपको पढ़ाई जा रही हूँ और ये है ही नहीं. है 3 ही दिया है इसमें, पर आप सभी पढ़ लो. अभी देखो मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में डेल्टा एच क्या आएगा? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो ये भी नेगेटिव आएगा. अभी गैस से लिक्विड में हुआ तो नहीं, सॉरी, लिक्विड से गैस में हुआ तो ये पॉजिटिव आएगा. गैस से लिक्विड में गया तो ये नेगेटिव. नेगेटिव. बराबर ना? अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है? एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, सॉरी फ्रीज. क्या होगा? the enthalpy change that occurs when 1 mole of liquid is converted into 1 mole of solid at constant temperature and pressure is called as enthalpy of freezing. करेक्ट. अब मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग जो है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? आप फ्रीज कर रहे हो, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, बॉन्ड फॉर्मेशन, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव. पॉजिटिव होगा. करेक्ट. नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, लिक्विड से सॉलिड. मिस हम लोग एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे हैं ना, मगर उसका फ्रीज हाँ करके हाँ तो करेक्ट. मिस पॉजिटिव आएगा ना. देखो सॉलिड से लिक्विड में गया तो बॉन्ड ब्रेक हो गया. बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होती है. ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ना, नजदीक आ रहे हैं. तो जब नजदीक आएंगे हाँ तो मिस, कुछ तो बाहर रिलीज होगा. निकलेगा. हाँ तो हाँ मिस, माइनस बराबर आएगा. बराबर. समझा? इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा. देखो ये वाला समझने के लिए. समझा? इतना लिख सकते हो डेफिनेशन. 1 2 3 4, इतना 4 डेफिनेशन लिखो. ये मैं बताती हूँ. इसमें क्या लिखना है? सिर्फ enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is directly converted into liquid. एक टर्म खाली वहां पे ऐड करना है, directly converted into 1 mole of gaseous state is at constant temperature and pressure is called as enthalpy of sublimation. लिखोगे ये भी? डेल्टा सब H. समझा फर्स्ट वाला? Any question in this? First write on the heading enthalpies of physical transformation. Write on the heading enthalpies of physical transformation. ढक्कन कहाँ रख दिया? लिखा?
चलो अभी ये साइड में लिख के रखो, एक इधर यूज नहीं है, सिर्फ साइड में लिख के रखो इतना कि पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। देन फर्स्ट हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, दिस इज कैपिटल है, ऐसे चार है। इसके बाद एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर चेंजेस, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे चार हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। इन दैट फर्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये चाहिए तो लिख के रखो, स्टेट्स चेंजेस को क्या बोलते हैं। कशिश का एक डाउट है इसमें सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव में, वो मैं लास्ट में बताती हूँ। कशिश याद दिलाओ, कन्वर्जन फैक्टर वाला कुछ तो। हो गया लिख के बच्चों, इतना हो गया लिख के। ओके, नाउ इन दैट फर्स्ट पॉइंट, हाँ इसका फर्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन लिखो, एंथैल्पी चेंज दैट occurs when 1 mole of solid is converted into 1 mole of liquid at constant temperature and pressure is called as enthalpy of fusion। और ये वाटर वाला एग्जांपल लिखो, और यही वाटर वाला एग्जांपल सभी जगह घुमाओ। एक बार लिक्विड से गैस में करो, गैस से सॉलिड में करो, ठीक है, लाइक दैट यू डू। ये हो गया फर्स्ट वन। सेकंड वन ये आएगा, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। थर्ड वन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। फोर्थ वन, enthalpy of freezing. Fifth one, enthalpy of sublimation. I hope you all can see it properly. How much time मीन्स you need to एट write on all the कांस्टेंट definitions? टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉमन होगा ना सब में? हाँ हाँ, yes yes, at constant temperature and pressure common रहेगा, correct। और वाटर को ही घुमा दो सब जगह। अभी जैसे आप ये लिखोगे ना एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, तो उसमें ऐसे लिखो H2O liquid is converted into H2O gas। अब लिक्विड से द बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। ये पॉजिटिव क्यों लिखा मैंने, हाँ बॉन्ड ब्रेकिंग है तो पॉजिटिव होगा, बराबर। बॉन्ड ब्रेकिंग है तो पॉजिटिव आएगा इसका भी। वो भी लिखो पॉजिटिव किलो जूल्स पर मोल, खाली पॉजिटिव और नेगेटिव लिख दो। उसके आगे ऐसे लिखो सेम लाइन में, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन H इज इक्वल्स टू पॉजिटिव किलो जूल्स पर मोल। हाउ मच टाइम यू नीड टू राइट डाउन दिस? मिस वो 5 एच minutes? एच सब में कॉमन होता है ना? क्या क्या, H मिस वो क्या? एच सब में कॉमन होता है ना? हाँ हाँ, ये यस फ्यूजन यस, का ये एच। एंथैल्पी वाला ना, हाँ हाँ, यस यस। ये डेल्टा फ्यूजन H मतलब ये एंथैल्पी है एक्चुअली, खाली फ्यूजन डाला है। फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये तो सब्लिमेशन मत लिखो, मैं बता दूंगी, इतना लिखो। Five minutes are okay to write down all the definitions? अच्छा चलो ठीक, 9 बजे फिर मैं आगे का सिखाती हूँ, ठीक है, इतना लिख लो। सेम स्टेटमेंट्स है बट यू राइट इट डाउन ना।
मैम डायरेक्टली वर्ड कहाँ पे ऐड करना है? sublimation में when 1 mole of solid is directly converted into 1 mole of gaseous state or into its vapor, directly into its vapor at constant temperature and pressure is called as enthalpy of sublimation. मैं भी क्या स्टैंड नीचे रख रही हूँ
मिस सब्लिमेशन का ये नेगेटिव होगा ना डेल्टा? सब्लिमेशन मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा ना, हाँ यस यस नेगेटिव रहेगा। एक मिनट बॉन्ड ब्रेक होगा ना, पॉजिटिव रहेगा। सब्लाइम कर रहे हो ना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो और ब्रेक हो गया ना, व्हेन इट विल ब्रेक वी नीड एनर्जी, तो इट विल एब्जॉर्ब, पॉजिटिव रहेगा। मिस लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग का पूछ फ्रीज रहे हो? फ्रीज हाँ मिस हाँ फ्रीज हाँ 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 यस यस यस, फ्रीजिंग का बराबर। सब्लिमेशन बोला तुमने, हाँ मिस तो वो फिर इधर बराबर है। जम्बल हो गया था। हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। सब्लिमेशन के नीचे थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है, बताती हूँ मैं, रुक जाओ। हाँ पहले इतना लिख लो। इस सब्लिमेशन का एक बार बोलो ना फिर से। हाँ, enthalpy change that occurs when 1 mole of solid is directly converted into its vapors. 1 mole of solid is directly converted into its vapors at constant temperature and pressure is called as enthalpy of sublimation. But see, experimentally, what has been proved? Have you seen camphor? It will direct convert into the gaseous state, correct? That is called as sublimation. Have you all seen that? Camphor is directly converted into the यस gaseous मिस state. But experimentally, it has been proved that solid for a very few fraction of seconds gets converted in the form of liquid, and then liquid will immediately convert it into the gas. So direct transformation practically nahi hota hai. Theoretically, we are saying solid is converted into the gaseous state, but practically what is happening, for a very few fractions of second अपने को पता भी नहीं चलेगा कि वो liquid में convert हुआ. So solid will first convert into the liquid and then liquid into the gas. So solid से liquid को क्या बोलते हैं? Enthalpy of fusion. Liquid से gas को क्या बोलते हैं? Enthalpy of vaporization. अब देखो इन दोनों को add करो, तो liquid liquid cancel हो गया, solid to gas क्या आ गया? Enthalpy of sublimation आ गया कि नहीं? Yes or no? If I'll add these two, you will get enthalpy of sublimation. Therefore, enthalpy of sublimation is also sum of enthalpy of fusion plus enthalpy of vaporization. आया समझ में? What I said? What I said here, theoretically we are saying solid is directly converted into the gas, that is a sublimation. It happens also in the laboratory also. There are some solids which will directly convert into the gaseous state. The best example is your camphor, but practically it is not possible for a very few fractions of second. It is the very fastest reaction, so you cannot even find out that solid will convert into the liquid, that is fusion, and then liquid to gas immediately. तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो ऑपोजिट साइड कैंसिल हो जाएंगे, तो सॉलिड टू गैस क्या आ गया? सब्लिमेशन. मतलब मैंने क्या किया? फ्यूजन और वेपराइजेशन को ऐड किया, तो आई विल गेट ओवर योर सब्लिमेशन. ये था आपका फॉर्मूला. और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या आएगा? बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, तो इट विल बी पॉजिटिव. क्लियर? हाँ ठीक है, सबका पॉजिटिव और नेगेटिव बताती हूँ. फ्यूजन मतलब ब्रेक हुआ, फ्यूजन मतलब ब्रेक हुआ ना, तो पॉजिटिव. ठीक है. वेपराइजेशन मतलब ब्रेक हुआ, पॉजिटिव. सब्लिमेशन ब्रेक हुआ मतलब पॉजिटिव. देन मिस बाकी नेगेटिव है ना? फ्रीजिंग, हाँ नेगेटिव बराबर. फ्रीजिंग का नेगेटिव आएगा, कंडेंसेशन का नेगेटिव आएगा, बराबर ना? यस मिस. और किसी को कुछ पूछना है? फर्स्ट समझ आ गया अच्छे से? फर्स्ट फेज ट्रांजिशन वाला. यस मिस नेक्स्ट क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, और इसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. 3 और है. चलो 3 और सिखाती हूँ, शायद 9:30 तक हो जाएगा वो. ठीक है. दैट वाज द फर्स्ट वन. नाउ सेकंड. अभी फर्स्ट वाले में 5 चीजें पढ़ी आपने. आपके टेक्स्ट बुक में ना 3 दिया हुआ है, बट वो 5 पढ़ा दिया मैंने. फ्रीजिंग और कंडेंसेशन भी पढ़ा दिया. उन लोगों ने शायद वेपराइजेशन और यही सब दिया हुआ है. ठीक है, तो इट इज फाइन, पूछते हैं एग्जाम में, डोंट वरी. नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और
molecular changes. Atomic or molecular changes. चलो, now first of all, H, H2, H plus, H minus. मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या बच्चों? No, ma'am. नहीं No, ma'am. नहीं मिस, ऋषि कौन सा नेटवर्क यूज करता है भाई तू? मिस उसको पिन करने को बोलो, पिन करने के बाद नहीं हो। बोल ना उसको, बेचारा वाईफाई पे है, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कब से बेचारे का सब गड़बड़ हो रहा है, वो शायद ठीक से सुन नहीं पा रहा। जरा उसको बोलो, गाइड करो जरा उसको। मेरा तो नेटवर्क सब बराबर है, मैं वाईफाई पे हूँ, मेरे यहाँ का नेटवर्क एकदम अच्छा है बच्चों। उसको जरा गाइड करो जरा, बेचारा हमेशा परेशान रहता है। मैसेज करके बोलो उसको पर्सनल पे। ऋषि आई आवाज अभी अच्छे से आ रही है? वाईफाई बंद करके मिस चालू बोला करो ना उसको। तुम्हारा। हाँ ठीक है, बेचारा हमेशा परेशान रहता है, उसको बेचारे को बहुत प्रॉब्लम होती है। चलो ठीक है, एंथैल्पी। अभी मुझे ये बताओ, ये सारे एटम्स लिखे, इसमें से आपको क्या ढूंढना है पता है? विच वन इज मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, विच वन इज एटम, विच वन इज आयन, अगर वो आयन है तो कटायन कौन सा है, और अनायन कौन सा है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बी सी डी। चलो, व्हाट इज ए? व्हाट इज ए? एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन है, क्या है? अच्छा ठीक है, आंसर लिख दिया क्या सबने? ओके। यश देखो एकदम स्मार्ट है। सी सी इज कटायन, डी इज एनायन, ठीक है। ए इज एटम and B is molecule, correct? So can I say molecule will break up to give you atom, correct ना? Molecule will break up to give you atom. अभी एटम की दो चीजें हैं, एक तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बनाता है? अनायन। और इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या बनाता है? कटायन। इतना क्लियर हुआ? मॉलिक्यूल विल ब्रेक अप टू गिव यू एटम, क्योंकि मॉलिक्यूल हमेशा HCl है सपोज, तो ये मॉलिक्यूल है, ब्रेक होके क्या बनाएगा? HNCl, तो H एटम एंड Cl एटम। क्लियर? अगर उसने एक्सेप्ट किया तो क्या बनता है? अनायन। Anions are always acceptors of electrons and cations are always donors of electrons, so cations will always acquire positive charge. इतना क्लियर हो गया सबको? अभी देखो, मैम फिर से जब रिपीट करो। हाँ, what I said, we have a molecule, molecule will break up in the form of atom. ये देखो, suppose I'm writing here chlorine, so chlorine will give you Cl plus Cl, तो molecule किस में convert हो गया? atom में convert हो गया, ठीक है। if my atom is accepting the electron, it will form anion, correct ना? देखो ना, आप लोग HCl पढ़ते हो या NaCl पढ़ते हो, तो Na डोनेट करता है, Cl एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। And if my atom is donating the electron, it will form cation. इतना क्लियर? हाँ मैम। सबका समझ आ गया? अब जब वो कटायन बनाता है ना, तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, ठीक है, क्योंकि एटम से आयन बन गया, सो इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। और जब वो अनायन बनाता है, दैट टाइम इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी। वापस लिखती हूँ, रुको अच्छे से। व्हाट आई सेड, वी आर हैविंग molecule, molecule will break up in the form of atoms. Atoms will take two things, either it will accept the electron and form anion, and when it will donate the electron, it will form cation, means it will acquire positive charge or it will acquire negative charge. तो जब मिस cation मतलब बनता मॉलिक्यूल है, ब्रेक होता है तो एटम बनता है, और एटम ब्रेक होता है yes, तो एनायन कैटायन। हाँ मतलब हाँ, करेक्ट, एटम से वो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तब जाके हम लोगों को कटायंस और अनायंस बनेगा, बराबर, करेक्ट। अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना, तो अनायन बनेगा।
ठीक है, और अगर एटम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कटायन बनेगा। आई विल गिव यू एग्जांपल्स, डोंट, ठीक है। तो जब वो कटायन बनाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन, और जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी, मींस इट इज हैविंग लॉट्स ऑफ लव टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन हो गया। ठीक है, अब आपको पढ़ना यही है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एक पढ़ना क्या है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये 3 चीजें आपको पढ़नी है। समझा मैंने क्या बोला, अंडरस्टूड? मिस उसने पिन किया फिर भी उसको नहीं आ रहा है मिस, उसका स्लो है शायद। तो दिन भर क्यों गेम खेलते रहते हो रे तुम लोग, हाँ? दिन भर गेम खेल के सब डेटा खत्म करेंगे तो कैसे चलेगा रात को? उसको बोल किसी और का वाईफाई या हॉटस्पॉट लेने के लिए। हाँ मिस वो बोल रहा है कि मैसेज आ रहा है बट आवाज उसको कुछ भी नहीं आ रहा है। इसे कैसे ना, लेकिन क्या कर सकते हैं अभी उसका, मुझे नहीं पता। उसको बोलो एक काम करो, लीव करो और किसी का हॉटस्पॉट लेके वापस रीजॉइन करो, जिसका हॉटस्पॉट अच्छा होगा, हाँ मिस नेटवर्क। बोल। ऐसे बोलो। चलो अभी फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम लोग एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। It is written as delta ion H. What is enthalpy of ionization? देखो अभी मैं क्या बोला मैंने, जब आयनाइजेशन का बात आएगा तो क्या होगा, कटायन फॉर्म होगा। Everything should be in the gaseous state, हाँ? So Na gaseous gets converted into Na plus gaseous with the loss of 1 electron. अब देखो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, मतलब बॉन्ड टूटा ना, तो डेल्टा H क्या आएगा, डेल्टा H of ionization will be positive kilojoules per mole। ये स्टेप समझा कि नहीं, पहले इतना बोलो, डेफिनेशन बाद में बताती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड? फिर से समझा। हाँ हाँ, ये देखो, when the formation of cation takes place that is called as ionization. So what is enthalpy of ionization? It is represented as delta ion H. Now see, your atom is in the gaseous state, you are forming ions also in the gaseous state, and there is a loss of electron. Correct है? कटायन है तो वो हमेशा देगा ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तभी उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब डेल्टा आयनाइजेशन H जो है वो पॉजिटिव कैसे आया, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग, यू आर रिमूविंग समथिंग फ्रॉम दिस एटम टू द आयन, यू आर ब्रेकिंग समथिंग। जब आप ब्रेक करते हो तो डेल्टा H क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। इतना क्लियर हुआ? मिस मिस वो बोल रहा है डाउनलोडेड मतलब रिकॉर्डेड बाद में देखेगा हाँ क्योंकि हाँ अभी उसको चलेगा, कुछ कोई सुना ही बात नहीं दे रहा नहीं। है। हाँ चलेगा, वैसे भी अभी 10 मिनट 15-20 मिनट ही बचा है, तो अभी क्या जाएगा क्या आएगा, चलेगा, उसको रिकॉर्डिंग देखने को बोलो। ठीक है, अभी देखो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, एंथैल्पी चेंज that accompanies the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom। करेक्ट है कि नहीं? मतलब जब आप 1 मोल ऑफ gaseous atom में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगी that is called as enthalpy of ionization। Is it okay? Again I am repeating what I said. When electron is removed from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous cation or the ion, so in that case whatever the amount of energy is required, that is called as enthalpy of ionization। Clear? So what is the definition? मिस हाँ मिस आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी इसका ऑपोजिट होता है ना? हाँ करेक्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन गेन एंथैल्पी नहीं, इलेक्ट्रॉन हाँ गेन मिस। एंथैल्पी है ना। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन लेगा कौन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेगा ना, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जो राइट साइड पे है। नॉन मेटल्स देंगे, मेटल्स हमेशा डोनेट करते हैं, तो मेटल्स के केस में हमेशा हम आयोनाइजेशन वर्ड ही यूज करेंगे, और नॉन मेटल्स के केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यूज करेंगे। समझा? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज करेंगे, व्हाटएवर। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन था इसका, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies the removal of electron from 1 mole of the gaseous atom। इजी एकदम, समझा?
ये मिस समझा कि ये नहीं, पहले इतना मिस हम बोलो। लोग लेंगे तो ये एनर्जी क्या करेगा मिस? देखो ना अभी यहाँ पे रिलीज क्या हो रहा है, रिलीज ये करेगा ना? सोडियम गैस, हाँ नहीं एब्जॉर्ब करेगा यश। देखो ना ये तोड़ रहे हो आप, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच के बाहर निकाल रहे हो ना। व्हेन यू आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन मींस यू आर ब्रेकिंग समथिंग। तो व्हेन यू ब्रेक, ऐसे याद रखो कि किसी को ब्रेक करना है मतलब झगड़ा लगाना है, तो वी नीड थर्ड पर्सन। हु इज दैट थर्ड पर्सन? दैट इज एनर्जी। सो इट विल एब्जॉर्ब। एनर्जी को आना पड़ेगा तब वो टूटेगा, एनर्जी के बिना वो ब्रेक नहीं होगा। वी नीड एनर्जी ना टू ब्रेक समथिंग, समझा? हाँ मिस, बराबर समझा मिस। है ना? हाँ ऐसे ऐसे करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या रहेगा। देखो अभी मैं क्या लिख रही हूँ, Cl gaseous accepts electron and forms Cl minus gaseous। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको लिखते कैसे है? डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आएगा डेफिनेशन? द एंथैल्पी चेंज दैट accompanies when 1 mole of gaseous atom of an element accepts the electron to form gaseous anion। क्लियर? अब मुझे बताओ डेल्टा EGH पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। करेक्ट, मिस इट विल नेगेटिव बी हो। नेगेटिव। करेक्ट, अभी समझ गया ना? आप फॉर्म कर रहे हो, यू आर फॉर्मिंग समथिंग, तो कुछ तो बाहर निकलेगा। जब दो चीजें ज्वाइंट होगी तो थोड़ा कुछ तो बाहर निकलेगा ना, इट विल बी ऑलवेज इवोल्यूशन। और जब आप इसको ब्रेक करना चाहते हो तो यू नीड टू अप्लाई एनर्जी। एनर्जी जाएगी मतलब एब्जॉर्ब होगी, तभी वो टूटेगा। ठीक है, ये दोनों मिस डेफिनेशन ये समझा? ईजी क्या है? EG इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन सबको समझा? व्हाट आई सेड, what is ionization enthalpy or enthalpy of ionization? When, sorry, the enthalpy change that accompanies the removal of electron from 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous ion is called as enthalpy of मिस ये लिखे ionization। अभी? हाँ मैं बताती हूँ, लेकिन लिखवाती हूँ ना, रुक जाओ। And what is EG? ओके। Delta EGH। तो ये क्या आएगा? When 1 mole of gaseous atom accepts the electron to form 1 mole of gaseous anion, तब 1 mole होना चाहिए। That is called as enthalpy of ionization, sorry, electron gain enthalpy। Atomization भी पढ़ा देती हूँ, फिर एक साथ लिखो। ठीक है, third is, this is the second one, and in this case third one is enthalpy of atomization। Atomization means it will form the atoms। It is written as delta ATM। Actually ATM नहीं लिखते, ATOM लिखते हैं, मैं हमेशा गलत लिखती हूँ वो। तो अब इसमें कैसे होगा देखो, क्लोरीन है, क्लोरीन in the gaseous state will break up as Cl gaseous plus Cl gaseous। Then suppose I have over here CH4 methane in the gaseous state form carbon in the gaseous state plus 4 hydrogen। This is also in the gaseous state। बताओ enthalpy of atomization पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? ब्रेक कर रहे हो आप, पॉजिटिव। पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट, इट विल पॉजिटिव। बी पॉजिटिव किलोजूल्स पर मोल। समझ आ गया? So what is enthalpy of atomization? The enthalpy change that accompanies the dissociation of 1 mole of gaseous substance into its atom। करेक्ट ना? द एंथैल्पी चेंज मतलब गैसियस सब्सटेंस को ब्रेक करना है उसके खुद के एटम्स में। सो वॉट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, so the enthalpy change that accompanies the dissociation means breaking of 1 mole of gaseous substance into its atoms is called as enthalpy of atomization। ये तीनों डेफिनेशन में से किसी को कुछ डाउट है? Any questions so far? No? चलो लिखो अभी फटाफट। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस। दिस इज सेकेंड वन। पहला वाला क्या था? एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। इन दैट यू हैव स्टडीड 5 definition। In this you are going to study 3 definitions। लिखा? एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस।
First one, enthalpy of ionization, delta ion H. बोलू? हाँ. हाँ. Okay, write down. The enthalpy change that accompanies, ये spelling है, that accompanies, the enthalpy change that accompanies the removal of electron, the enthalpy change that accompanies the removal of electron from 1 mole of मैम फिर से gaseous, स्टार्टिंग से बोलो ना. the enthalpy change that accompanies the removal of an electron, the removal of an electron from 1 mole of gaseous atom. देखो, from 1 mole of gaseous atom is called as enthalpy of ionization. Is called as enthalpy of ionization. फिर ये एग्जाम्पल लिखो सोडियम वाला, और उसके बिल्कुल सामने लिखना है, ये रूल है कि उसका जो भी डेल्टा एच है वो बिल्कुल उसके सामने लिखा जाता है. तो डेल्टा एच ऑफ आयन यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है. आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर. 494 किलो जूल्स पर मोल होता है. तो नो नीड टू बाय हार्ट दोज नंबर्स. हो गया? Yes, ma'am. पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ऐसे लिखो डेल्टा EGH. EG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. मिस मिस एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन के नीचे मतलब डेफिनेशन के नीचे क्या लिखने का था? ये लिखने का था एग्जाम्पल, ये वाला. सोडियम गैसियस Na+ इलेक्ट्रॉन, और ये सब आता है पता है 2-2 मार्क्स के लिए. कभी कभार 5 मार्क्स के लिए 5 अलग अलग डेफिनेशंस आ जाते हैं. हो गया? नेक्स्ट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. ये लिखो डेल्टा EGH. चलो फटाफट 2 डेफिनेशन लिख के तुम लोग की छुट्टी. द एंथैल्पी चेंज, बोलूं? मिस Yes. किसका बोल रहे हो आप? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका. ये आयनाइजेशन हो गया, उसका डेफिनेशन लिखा, उसका एग्जाम्पल लिखा. अब ये सेकंड वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. हाँ मिस, हो गया, बोलो मिस. हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. The enthalpy change that accompanies when 1 mole of gaseous atom of an element, 1 mole of gaseous atom of an element except the electron to form gaseous anion, is called as electron gain enthalpy. Is called as
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ये क्लोरीन वाला एग्जांपल लिखो, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के आगे क्या लिखेंगे? नेगेटिव किलोजूल्स पर मोल। इट्स एग्जैक्ट नंबर इज -349 किलोजूल्स पर मोल। रो लिखने की जरूरत नहीं, इट्स फाइन। गॉट एवरीबॉडी? Yes, ma'am. और अभी ये थर्ड वाला, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एटम H। रेडी? यस। चलो लिखो, द एंथैल्पी चेंज that accompanies, सारे डेफिनेशन वैसे ही स्टार्ट करना। the enthalpy change that accompanies the dissociation of, dissociation means breaking, the enthalpy change that accompanies the dissociation of 1 mole of gaseous substance, 1 mole of gaseous substance into its atoms, into its atoms is called as enthalpy of atomization। और ये दोनों एग्जाम्पल लिखो, क्लोरीन से ClCl गैस बन गया, मीथेन से C गैस, और ये तो डेल्टा एटमाइजेशन दोनों का भी क्या आएगा? पॉजिटिव किलोजूल्स पर मोल। पॉजिटिव क्यों लिखा? क्योंकि वो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझा? अभी खाली ना थर्ड वाला हेडिंग लिख के रखना, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कल करेंगे, थर्ड वन, दैट वी विल डू टुमारो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अभी कशिश का एक डाउट है, वो मैं बता देती हूँ। लैपटॉप से लॉगिन करूँ क्या? मिस हाँ, मिस ये एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? एटोमाइजेशन का मतलब होता है मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया एटम्स के फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल को जब एटम के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो कुछ तो एनर्जी लगेगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एटोमाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी का मतलब ही एनर्जी होता है, हाँ मिस समझा? समझा। अभी देखो ये मीथेन है ना, मीथेन किस में ब्रेक हो गया? मीथेन का बॉन्ड ऐसे रहता है CH4, करेक्ट? तो इस बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो वी नीड सम एनर्जी, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक कार्बन में और 4 हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, so that time it is called as molecule is converted into the atom, it is called as enthalpy of मिस तो वो atomization। एरो के ऊपर हम डेल्टा डाल सकते हैं, मतलब कौन सा एनर्जी, एरो? मतलब हीट हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, हाँ बराबर। तो कौन मिस सा इधर एरो? हम लोग इधर मिस ये है ना CH4 गैस, फिर ये एरो। एरो, अच्छा हाँ मिस डाल सकते हैं, बट लिखते नहीं है वैसा इस मिस केस में, क्योंकि ये एटम नहीं उड़ता, गैसियस सब्सटेंसेस उड़ते नहीं है। कौन सा सब्सटेंस उड़ता है? जब H2 गैस होता है तब उड़ता है, क्लोरीन गैस होगा तब उड़ता है, वो मॉलिक्यूलर स्टेट में उड़ता है, ये एटॉमिक स्टेट में है, तो ये जल्दी से फटाफट उड़ता नहीं है, समझा? मिस नहीं, इट वो इज देयर। मिस वो हाँ वाला नहीं बोल रहा हूँ तो मिस, मिस ये आड़वा एरो है ना, ये बोल रहा हूँ। आड़वा एरो, हाँ। उसके ऊपर मिस हम लोग, मिस नीचे इसके ऊपर हम लोग ये डेल्टा डाल सकते हैं, मतलब हम लोग नहीं हीट नहीं दे रहे नहीं हैं नहीं नहीं तो नहीं वो। नहीं नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं, डोंट डू एनीथिंग, नहीं, क्योंकि जब पता नहीं है ना मैंने इसको कैसे ब्रेक किया। अगर ये मेरा कोवैलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर नॉट प्योरली आयनिक, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉट प्योरली कोवैलेंट, तो अभी ऐसे भी हो सकता है ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा, तो मेरे को पता नहीं मैंने कैसे ब्रेक किया, बाय यूजिंग विच। कभी कभार क्या होता है, इफ यू आर गोइंग टू कीप इट इन द सनलाइट आल्सो इट विल ब्रेक अप, तो सनलाइट होगा तो आप यूवी रेडिएशंस लिखोगे, H न्यू, करेक्ट ना? सो देयर आर डिफरेंट कंडीशंस, सो डोंट स्पेसिफाई द कंडीशन, क्योंकि दिस इज नॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो कुछ कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट राइट इट विल जस्ट कन्वर्टेड इनटू। तो यहाँ पे हम लोग हीट मतलब एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी कौन से फॉर्म में है दैट आई डोंट नो। ओके यश, अच्छा मिस। डोंट डू दैट। हाँ मिस अच्छा मैं ना मेरा बुक का स्क्रीन शेयर करती हूँ इधर से ही। ये हो गया लिख के? कहाँ से शेयर करते हैं? Yes, ma'am. बुक को जरा देखने दो मुझे ही, एक सेकंड रुको, जाओ मत।
छोटा सा डाउट है कशिश का, ठहरो। स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? Yes, ma'am. हेलो, हाँ रुको, ये क्या मेरा फोन भी फालतू है, एक मिनट। हाँ, कशिश कौन से चैप्टर में था? सोल्यूशन में ना? किसमें था? सेकंड, हाँ सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। सोल्यूशन में, हाँ रुक जाओ। ये है ना, ये है ना, ये है ना सम 2.2। 2.2 मैम। हाँ ये देखो ना, यही है ना, देखो दिख रहा है। हेलो, यस सबको दिख रहा है? कशिश कैन यू सी? हाँ, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द हेनरीज लॉ नहीं दिख रहा है? मिस दिख रहा है स्क्रीन? इसको क्यों नहीं दिख रहा? मुझे भी ऐसे यहाँ पे शेयर तो हुआ है। कशिश लीव होके वापस ज्वाइन कर, तुम लोग के नेट का बहुत लफड़ा है रे। उसको ही बेचारे को डाउट है, उसको ही दिख रहा नहीं है। मिस एयरटेल का दिख बेस्ट रहा है। है? हाँ ठीक है ठीक है, चलो अभी देखो क्वेश्चन क्या है। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, में डायरेक्टली सम पे आती हूँ। एस इज इक्वल टू के एच पी, दिख रहा है सबको? यहाँ पे लिखते कैसे वो मुझे पता नहीं है, छोड़ो जाने दो। S is equals to KHP. Now KH is given as 0.159 moles per liter per bar. Solution में देखो। हाँ, अभी प्रेशर देखो, 130 mm of mercury, तो 1 atm कितना होता है? 760 mm of mercury होता है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 130/760 लिखा, दैट इज फाइन। तो आपको किसमें कन्वर्ट करना है? आपके प्रेशर को, एटमॉस्फेयर को किसमें कन्वर्ट करना है? यू हैव टू कन्वर्ट इट टू द बार्स। So how to convert? You have to multiply by that factor, which is 1.013. तो जो आप क्या करोगे, एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा ना, देखो बार बाय एटमॉस्फेयर है दिखा, तो ऊपर का एटमॉस्फेयर नीचे का एटमॉस्फेयर कैंसिल हो जाएगा। यू विल गेट योर आंसर इज इन बार। तो ये कन्वर्जन फैक्टर है, 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, ये कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, and you have to convert atm into bars, so again you have to multiply by 1.013. समझा कशिश? इसलिए वहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। हेलो, हाँ मिस समझा। समझा ना, इसके लिए उसको मल्टीप्लाई किया है। अगर हम लोग को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में चाहिए होता ना तो हम डायरेक्टली कर देते, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट टू बार, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1.013, फिर वो कैंसिल हो जाएगा। देखो यूनिट्स देखो, एटीएम है और दूसरी जगह पर बार बाय एटीएम है, तो एटीएम एटीएम कैंसिल हो जाएगा ना, तो अपने को आंसर क्या मिलेगा? बार। तो दिस इज जस्ट अ कन्वर्जन फैक्टर, और फिर उसको नीचे से मल्टीप्लाई किया उसको। ओके, मिस वो प्रेशर को कैसे कन्वर्ट किया लोग ने? देखो प्रेशर को क्या किया, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, तो अपने पास प्रेशर कितना था? किधर गया प्रेशर का? 130 mm है ना, तो 130 mm इज इक्वल टू 130 mm इज इक्वल टू हाउ मेनी एटमॉस्फेयर? उल्टा कैलकुलेशन करने का है। रुको मैं बताती हूँ, स्टॉप शेयर करती हूँ। ये देखो कैसा है, 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्क्यूरी, ऐसा था ना। तो अभी क्या पूछा है क्वेश्चन, 130 mm दिया हुआ है मुझे, 130 mm ऑफ मर्क्यूरी इज इक्वल टू हाउ मेनी एटमॉस्फेयर, तो x कितना हो जाएगा? बोलो, समझा मिस। 130 डिवाइडेड बाय 760 हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा एटमॉस्फेयर में, मुझे बार में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, 130/760 इंटू 1.013, तो ये मेरा जो आंसर आएगा ना फाइनल, दैट विल बी इन बार। समझा मिस समझा? समझा।
कशिश अंडरस्टूड? ठीक है, चलो अभी स्टॉप करते हैं यहाँ पे. टुमारो वी विल मीट अगेन मॉर्निंग में 10:30. ठीक है, चलो बाय बाय, टेक बाय केयर. मिस. बाय, वेलकम, बाय बाय.